اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبور کی ملکہ برفانی سردیوں میں سیر کو نکلتی ہے۔ اسے برف میں ایک گلاب کا پھول نظر آتا ہے۔ وہ سرخ روشن گلاب بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ملکہ اسے پکڑنے لگتی ہے، تبھی اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ جاتا ہے، جس سے ملکہ کے خون کی 3 بوندیں برف میں گرتی ہیں۔ وہ برف پر گر کر اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ ملکہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہونے والی بیٹی بھی اسی برف کی طرح وائٹ ہو۔ اس کی جلد برف جیسی سفید ہو، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہوں، بال کوے کے پروں کی طرح کالے ہوں اور اس کا دل گلاب جیسا مضبوط ہو۔ جب ملکہ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور ویسی ہوتی ہے جیسی اس کی خواہش تھی، اور اس کا نام سنو وائٹ رکھتی ہے۔ آگے چل کر ہم مووی میں دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ بڑی ہو جاتی ہے اور ملکہ بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ سنو وائٹ کی مدر کی ڈیتھ کے بعد اس کے فادر پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ان کی جنگ ڈارک آرمی سے ہوتی ہے۔ بادشاہ اس جنگ کو جیت جاتا ہے۔ اس کے آدمی بتاتے ہیں کہ ڈارک آرمی نے ایک لڑکی کو باندھی بنا کر رکھا ہے۔ جب بادشاہ اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے۔ اس کا نام روینہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اس سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کی رات کو وہ اسے بتاتی ہے کہ میری شادی بھی ایک راجا سے ہوئی تھی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ سب کنگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری جان لے لوں گی اور تمہاری سلطنت پر قبضہ کروں گی۔ پھر وہ اسے مار دیتی ہے۔ وہ آرمی بھی روینہ کی ہی تھی، اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کی سلطنت پر بھی تباہی مچا دیتی ہے۔ سنو وائٹ جب یہ دیکھتی ہے تو اپنے دوست ولیم کے ساتھ اس کے فادر کے گھر بھاگ جاتی ہے۔ سنو وائٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے قلعے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس سین میں دیکھتے ہیں کہ روینہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت ہے۔ وہ جوان لڑکیوں سے جادو کے ذریعے ان کی عمر چھین لیتی ہے۔ کچھ اور ٹائم گزرتا ہے تو اس کی طاقتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہتی۔ جادوگر روینہ کے پاس ایک آئینہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس آئینے کے سامنے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، اے آئینے، یہ تو بتلاؤ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ آئینہ کہتا ہے کہ پہلے تو سب سے زیادہ خوبصورت تم تھی، لیکن اب جب سے سنو وائٹ جوان ہوئی ہے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم میں پہلے جیسے طاقت بھی نہیں رہی اور تم سنو وائٹ سے ماری جاؤ گی۔ لیکن اگر تم اس کا دل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو تم جوان رہو گی اور تمہیں کسی دوسری لڑکی کی عمر چھیننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روینہ یہ سن کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے سنو وائٹ کا دل چاہیے۔ وہ سنو وائٹ کے پاس جاتا ہے اور سنو وائٹ پوچھتی ہے کہ تم کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دل لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر سنو وائٹ اس کو دھکا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب ڈارک آرمی کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ سنو وائٹ بھاگ کر ڈارک فاریسٹ میں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر روینہ کا جادو نہیں چل سکتا اور نہ ہی اس کی آرمی ادھر انٹر ہو سکتی ہے۔ سنو وائٹ جب ڈارک فاریسٹ کے اندر جاتی ہے تو اسے وہاں سے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسے عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ ان ڈراؤنی چیزوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب مووی کے اس سین میں ہم جادوگرنی روینہ کو دیکھتے ہیں، جو کہ سنو وائٹ کے فرار کا سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میرا جادو نہیں چلے گا، تم کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جو ڈارک فاریسٹ میں چلا جائے اور سنو وائٹ کو لا سکے۔ اس کام کے لیے وہ ایرک ہینٹس مین کو بلاتی ہے۔ وہ پہلے بھی ڈارک فاریسٹ جا چکا ہے، لیکن وہ وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک جنگل ہے۔ سنو وائٹ تو اب تک وہاں مر چکی ہوگی۔ جادوگرنی چلاکی سے پتہ لگاتی ہے اور ہنٹس مین کا فیوچر دیکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری وائف مر چکی ہے، میں اسے زندہ کر دوں گی، لیکن بدلے میں تمہیں سنو وائٹ کو لانا ہوگا۔ ہنٹس مین اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ جادوگرنی کے بھائی اور آرمی کو لے کر کالے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے ڈارک فاریسٹ کا سارا راستہ پتا ہو، سنو وائٹ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ سنو وائٹ اس کی منتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ لوگ تمہیں بھی دھوکہ دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ پھر ہنٹس مین جادوگرنی کے بھائی سے کہتا ہے کہ تم پہلے میری وائف دو، پھر میں سنو وائٹ کو تم لوگوں کے حوالے کروں گا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم تو بے وقوف ہو، میری بہن کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، لیکن وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتی، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر ہنٹس مین غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ روینہ کا بھائی بھاگ جاتا ہے۔
स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि मुझे विलियम के फादर के पास ले जाओ, उनके किले में मैं महफूज रहूंगी। फिर स्नो वाइट उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हें सोने के महल दूंगी, तुम मेरा ये काम कर दो। वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब हम मूवी के सीन में देखते हैं कि ड्यूड का बेटा विलियम बड़ा हो जाता है और वो उसे बताता है कि स्नो वाइट घर से भाग गई है। विलियम भी स्नो वाइट की मदद करने के लिए निकल पड़ता है और उससे रवीना जादूगरनी का भाई मिलता है और उसके साथ तीर अंदाज होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें तीर अंदाजों की जरूरत है। वो कहता है कि नहीं, हमें नहीं जरूरत। वो उसे तीर से मारता है लेकिन उसे तीर नहीं लगता और वो तीर चलाने वाले को मार देता है। इस तरह से विलियम को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। फिर मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि हंट्समैन स्नो वाइट को लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उनके सामने एक खतरनाक जानवर आ जाता है। स्नो वाइट उस जानवर की आंखों में आंखें डाल के देखती है तो वो चुपचाप उस जगह से चला जाता है। अब वो दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने कुछ औरतें आ रही हैं और वो उनसे पूछती हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो। वो कहते हैं कि हम मलका रवीना से भाग कर आए हैं। वो औरतें उन्हें अपने साथ गांव में ले जाती हैं। उनके गांव में कोई भी मर्द नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रवीना ने सब मर्दों को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है। इस गांव में औरतों ने अपने चेहरे खराब किए होते हैं ताकि रवीना जादूगरनी इनको इनकी खूबसूरती की वजह से उठा कर न ले जाए। फिर हंट्समैन को पता चलता है कि स्नो वाइट तो एक शहजादी है। रात के टाइम में हंट्समैन वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर वहाँ पर रवीना जादूगरनी का भाई हमला कर देता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन ये देख लेता है और फिर दोबारा से वापस आता है और स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। अब हम इस सीन में जादूगरनी को देखते हैं जो कि पहले से भी ज्यादा कमजोर और बूढ़ी हो चुकी है। वो अपना बचपन का टाइम याद कर जब एक बादशाह उसे लेने के लिए आ रहा था तो तब उसकी माँ ने उसी के खून के 3 कतरे सफेद बर्फ में डालकर उसको पिलाए थे और जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी हिफाजत करेगी। लेकिन इस ताकत को खूबसूरती ही तोड़ सकती है और वही इसके साथ हो रहा था क्योंकि स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो कमजोर होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि स्नो वाइट और हंट्समैन जंगल से गुजर रहे होते हैं और इनका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो दरख्त से उल्टे लटक जाते हैं। वहाँ पर 8 बौने आते हैं। वो लोगों को लूटते हैं लेकिन इनके पास से कुछ नहीं मिलता तो वो इनको कत्ल करना चाहते हैं। स्नो वाइट उनसे कहती है तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो बौना कहता है कि हम उसके खिलाफ लड़ना बंद कर चुके हैं क्योंकि उसने हमारे राजा मैग्नस को मारा था। स्नो वाइट कहती है कि मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ। इनमें से कोई भी उस पर यकीन नहीं करता लेकिन इनमें से एक अंधा होता है। वो बताता है कि ये शाही खून है और ये जादूगरनी को भी हरा सकती है और ये फ्यूचर की मलका है। फिर इनको नीचे उतार दिया जाता है और फिर इनको फॉरेस्ट के खुफिया रास्तों से परियों के देश में ले जाया जाता है। वहाँ पर वो महफूज होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जादूगरनी अपने भाई और आर्मी के साथ स्नो वाइट और हंट्समैन का पीछा करती हुई जाती है। उसकी आर्मी में उसका दोस्त विलियम भी होता है जो जानबूझकर स्नो वाइट को ढूंढने के लिए इस आर्मी में शामिल हुआ था। वो स्नो वाइट को ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हंट्समैन को दिखाया जाता है जो पीछे छूट गया था। वो जादूगरनी के भाई के साथ लड़ाई करता है। जादूगरनी का भाई लड़ाई के दौरान बताता है कि तुम्हारी वाइफ को मैंने मारा था, उसने तुम्हारा नाम भी पुकारा था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। हंट्समैन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे उठाकर दरख्त के साथ मारता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। जब जादूगरनी ये देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है लेकिन वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाती और उसका भाई मर जाता है। फिर अगली सुबह स्नो वाइट जंगल में टहल रही होती है तो इसके पास विलियम आता है। वो दोनों अपने बचपन की बातें करते हैं। विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने को देता है जिसे वो कहती है तो उसे कुछ होने लगता है। असल में उसमें जहर होता है। विलियम के रूप में जादूगरनी रवीना होती है जो अपने असली रूप में आ जाती है। वो स्नो वाइट से कहती है कि मेरी खूबसूरती को सिर्फ तुम तोड़ सकती हो, इसलिए अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम मर जाओगी। वो इसका दिल निकालने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर हंट्समैन और विलियम आ जाते हैं। जादूगरनी अपना रूप बदलकर वहां से भाग जाती है। हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसीलिए विलियम स्नो वाइट को किस करता है। वो समझ जाते हैं कि स्नो वाइट को बचाया नहीं जा सकता। फिर उसको ड्यूड के किले में लाया जाता है। रात को हंट्समैन भी उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ की याद दिलाती हो।
असल में दिल ही दिल में वो स्नो वाइट को पसंद करता है। वो देखता है कि स्नो वाइट की आंख से आंसू निकला होता है जो कि विलियम के किस करने पर निकलता है। उसके बाद हंट्समैन भी उसको किस करके वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट की दूसरी आंख से भी आंसू निकलता है क्योंकि उनका प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा होता है, जिसकी वजह से जादूगरनी रोवीना का जादू टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। इसके बाद वो किले में जाती है और सबसे कहती है कि हमें जादूगर रोवीना से मुकाबला करना होगा और बुराई का खात्मा करना होगा। तुम लोग जानते हो कि मैं उसे मार सकती हूँ। सब उसका साथ देते हैं और किले पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट भी रोवीना के पास जाती है और दोनों में फाइट होती है। रोवीना आग पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, मैंने कितनी जिंदगियां जी हैं। अब मैं तुम्हारा दिल निकाल कर हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी। वो खंजर लेकर उसका दिल निकालने के लिए जाती है। जैसे ही वो स्नो वाइट को खंजर मारती है तो स्नो वाइट उसका वार रोक लेती है और उसके पास जो खंजर होता है वो रोवीना के पार कर देती है और जादूगरनी रोवीना की मौत हो जाती है। अब फिर से खुशहाली शुरू हो जाती है। स्नो वाइट के फादर का ताज स्नो वाइट को पहनाया जाता है। स्नो वाइट को मलका बना दिया जाता है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।